Hope you all are doing good. This is Tehreem Kardezi here, and welcome to the Physics Masterclass. I know it's physics, and you guys might be already tired, right? But listen, we are not going to go for like a usual bore fest today. My only goal here is to make you guys go from, oh, ये इस तरीके से भी हो सकता है. So yes, physics is not that difficult of a subject, and we will be making it more interactive and fun today. So whether you're preparing for MDCAT or NUMS, you guys need to stay with me. I'll keep it quick, focused, and way less painful than you guys are actually expecting. So, and yes, if you guys get bored in the middle, just write that in the chat box and we will try to shake things up. So for now, you guys can see a form in the chat box. If you guys want an exclusive hand-tailored schedule for your MDCAT preparation, you guys need to fill that form out, and most probably you guys will need that. So make sure to fill that form out that is mentioned in the description. Starting with our session, we are gonna start with an introduction. So most of you might know me. This is Tehreem Kardezi here, and I scored 182 in my MDCAT, and it has been almost 2 to 3 years since I've been teaching here physics on pre-med. So today we will be discussing on how to prepare for your MDCAT or NUMS physics portion. So moving to the next slide, first we're going to talk about the marks distribution. जब हम MDCAT की बात करते हैं तो आपका जो physics का portion होता है that has 36 MCQs. Like you have a total of 180 MCQs, जिसमें से the 36 MCQs are from physics portion. That implies कि 20% of your exam it is based on your physics portion. And every MCQ is a game of logic and formula. देखो, either the MCQ is going to be theory based, जिसमें आपकी logic use हो रही है, या फिर it's going to be numerical based, जिसमें you have to apply a formula. One mistake and it can cost your seat. So you need to master every single concept out there. अच्छा, coming to the resources. Often the students are confused कि हम resource कौन सा use करें while they are preparing for their MDCAT or NUMS. So when we talk about the resources, first of all, you guys need to stick to your province board की book. Okay, whether if you're like going to take the MDCAT from federal, you need to stick to federal. अगर आप पंजाब से दे रहे हो, so you need to stick to Punjab, and same goes for every single province. ठीक है? So first of all, your main resource should be your main province की book. Then comes Punjab board की आप physics की book use कर सकते हो for extra explanation and details. Then if you need to practice, and that is the most important thing. Practice आपके पास, it plays a very vital and pivotal role when it comes to solving questions, especially in a competitive exam like MDCAT. So practice तो आपने बिल्कुल छोड़नी नहीं है ना, वो तो आप लोगों ने लाजमी करनी है. So for that, you guys can use pre-med. And past papers तो वो चीजें कि वो मैं ये कहूंगी कि अभी से start कर दो. When you are done with a chapter, ठीक है, make sure to start with the past paper MCQs. अगर आप लोग pre-med use कर रहे हो तो वहां पे आप लोगों को अलग से मिल जाते हैं past paper MCQ and practice MCQ, and they are divided chapter wise. So आप लोग easily you don't have to like go through every single past paper and find कि इस chapter से related इसके अंदर question है कि नहीं. आपको एक compiled form में, एक organized form में वो सारा कुछ एक platform pre-med पे available है. So you guys can go check those out and solve the past papers, especially 2020 to 2024 तक के जो past papers, and you guys need to master them. Every single question, even if the question you're thinking it is out of syllabus, you need to master that concept as well. ठीक है, past paper questions are really important, and you don't have to just memorize the derivation या फिर आंसर याद कर लिया कि अच्छा क्वेश्चन ये है तो इसका आंसर ये था, ऐसे करके नहीं करना. You have to focus on the concepts. Your concepts should be crystal clear, और आपको formula रटा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि ये पता होना चाहिए कि how are you going to apply the formula. कभी कभी ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स डू एक्चुअली नो कि उनको फॉर्मूला तो आता होता है, फॉर्मूलाज वगैरह आते होते हैं, बट उसको अप्लाई कैसे करना है इन द क्वेश्चन दे हैव नो आइडिया हाउ टू डू दैट, एंड दिस इज अ स्किल. देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस और क्वेश्चंस या हम एमसीक्यूज की बात करते हैं, यू हैव टू मास्टर दिस स्किल. दिस इज अ स्किल यू नीड टू एक्वायर, एंड हाउ आर यू गोइंग टू मास्टर दिस? बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चन. सो देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस. ठीक है, इट्स नॉट एज इफ आई एम गोना टेल यू कि डू दिस, इस तरीके से पढ़ो, इसको याद करो और फिर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने आ जाएंगे. नो, दिस इज अ स्किल, यू नीड टू मास्टर इट. यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज इन ऑर्डर टू मास्टर द स्किल, सो दैट जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आप इजीली हर चीज को सॉल्व कर सको, एंड देयर इज नॉट नो सिंगल कंफ्यूजन आउट देयर देन. ठीक है, सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि यू मस्ट हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, स्पेशली इन फिजिक्स. आई एम नॉट जस्ट गोना से इट्स अबाउट फिजिक्स, हर सब्जेक्ट में ही क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, देन वी आर गोना टॉक अबाउट योर प्रिपरेशन चेकलिस्ट. ठीक है,
So you need to read your book with margin notes. Let's say if you guys want to study from different books, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो आपकी मेन बुक है वहां से आप सबसे पहले रीड आउट कर लो, जो चीजें आपकी एडिशनल पॉइंट्स हैं वो आप मार्जिन पे नोट कर लो. यू कैन यूज अ स्टिकी नोट, और या जो साइड पे जगह होती है वहां पे लिख लो, वट एवर वर्क्स फॉर यू. ठीक है, इसको इस तरीके से आप लोग अपनी बुक पे जो मेन बुक है उसी के ऊपर शॉर्ट लिस्टिंग भी कर सकते हो. Then make sure you guys are highlighting the formulas, जो laws हैं उनको याद करें, definition समझ रहे हो, ठीक है. And आपके जो chapter के end पे numericals given होते हैं, most of them are FSC related. You need to have a calculator to solve them. But the simpler ones or the short ones, make sure you guys do that, or make sure you master the concept that is basically behind that particular numerical, ठीक है. Then you have to master all the conceptual MCQs, क्योंकि देखो concept clear होंगे तो MCQ करना it becomes easier, ठीक है. And you have to attempt timed practice test. अब timed practice test क्यों important है? Students के साथ अमूमन ऐसा भी हो जाता है कि they might know all the questions out there, but उनकी time management जो होती है ना वो थोड़ी weak होती है. They don't know कि how to manage all the questions in the allocated time. एंड दैट इज द रीजन वाई कुछ लोगों के क्वेश्चंस रह जाते हैं, या अगर नहीं भी रह रहे हो एंड पे आप पैनिक करना शुरू हो जाते हो कि इतना सा टाइम है, इतने ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज दैट, ठीक है. एंड इन दैट पैनिक सिचुएशन जो चीज आपको आ रही होती है आप वो भी गलत कर सकते हो, ठीक है. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड सच अ सिचुएशन यू नीड टू अटेम्प्ट द टाइम्ड प्रैक्टिस टेस्ट. यानी आपके पास जो पेपर है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 2 hours. You have 180 questions. 2 hours is technically, when we talk about 1 hour, 3 hours. You have 3 hours. So हम 3 से exar करते हैं तो you get 18. You have 180 minutes for 180 questions. So nearly a minute for a single question out there. ठीक है, आपने अपनी प्रैक्टिस को इस तरीके से रखना है कि आप हर क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सको इजीली, ठीक है, विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी एंजाइटी, प्रेशर और बर्डन, ठीक है. क्योंकि वंस यू थिंक कि यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड यू गेट एंशियस, फिर आप जो क्वेश्चंस आते होते हैं ना वो भी गलत करना शुरू हो जाते हो. सो आप अगर तो आप प्रीमेड यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजर, तो आप यूज कर सकते हो, देयर इज दिस ऑप्शन टाइम टेस्ट मोड, जिसमें आप मॉक्स और पास्ट पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हो. आफ्टर टाइम ऑफ 3 hours आपका पेपर खत्म हो जाएगा एंड आपको रिजल्ट शो हो जाएगा वेदर यू हैव कंप्लीटेड इट और नॉट. इस तरीके से एक अकाउंटेबिलिटी रहती है. अदरवाइज यू कैन डू इट एट योर होम एज वेल. यू कैन सेट अ टाइमर, ठीक है, उसके अंदर उस चीज को कंप्लीट करो. लेकिन इस तरह टाइमर में कभी कभी ये भी हो जाता है वी ऑफन गेट डिस्ट्रैक्टेड, किसी ने बुला लिया, मामा ने कोई काम कह दिया और समथिंग लाइक दैट, ठीक है. तो हम कहते हैं अच्छा टाइमर हमने पॉज कर दिया एंड देन वी लाइक वेंट देयर एंड एवरीथिंग. सो इस तरह भी हो जाता है. बट मेक श्योर यू हैव लाइक एन अकाउंटेबिलिटी सॉर्ट ऑफ थिंग, जिसकी वजह से आप चेक एंड बैलेंस रख सको चीजों का. देन व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिक्स, ग्राफ्स आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो यू नीड टू रिवाइज ग्राफ्स, और यूनिट्स भी आने चाहिए. कभी कभी स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रही होती कि फिजिकल क्वांटिटी जो क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल में मेंशन है वो है कौन सी, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स में चीज डायरेक्टली मेंशन नहीं होती, ठीक है. तो आपको वो यूनिट देख के फिगर आउट करना पड़ता है कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज दिस. लेट्स से let me give you a question. If there is this question from the chapter electromagnetic induction, let's say, ठीक है, और उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन के अंदर एक क्वांटिटी दी हुई है, पीछे मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है एंड आगे लिखा हुआ है कूलम पर किलोग्राम, ठीक है. तो आपने फिगर आउट करना है कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बेसिकली, ठीक है. तो आपने ये देखना है कि कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज एंड किलोग्राम इज द एसआई यूनिट ऑफ मास. सो दिस इज चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू, ठीक है. तो आपने कभी कभी ये करना होता है कि जो यूनिट है उससे फिगर आउट करना होता है कि विच फिजिकल क्वांटिटी आर वी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, ठीक है. देन वी हैव लर्न शॉर्टकट्स एंड कैलकुलेटर फ्री ट्रिक्स. सिंस यू गाइस नो कि जो कैलकुलेटर वो आप लोगों को अलाउड होता नहीं है, सो फॉर लेंथी क्वेश्चन जिस तरीके से आपके पास मोमेंटम के क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर आपके पास एवरेज वेलोसिटी है, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें यू नीड टू हैव अ शॉर्टकट ट्रिक जिससे आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको. एंड शॉर्टकट formulas are so important. I cannot emphasize how much shortcut formulas are important because they save a lot of time. ठीक है, आप एक लेंथी मेथड से एफएससी वाले मेथड से उसको करने बैठोगे तो इट इज गोइंग टू टेक 5 to 6 minutes बहुत इजीली. फिर बीच में जो हम फंस जाते हैं क्वेश्चन करते हुए, समझ नहीं आ रहा होता, एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, वो चीज तो बिल्कुल अलग है, ठीक है. सो इफ यू वांट टू जस्ट straightforward do a question using a lengthy procedure, it is going to take 5 to 6 minutes and you don't have that amount of time, right? So आप लोगों ने करना ये है कि you have to master shortcut formulas, learn shortcut formulas and calculator free tricks होती हैं जिस तरीके से without calculator आपने fractions किस तरह solve करनी है, आपने decimal किस तरह देखना है, आपने numbers को multiply कैसे करना है. तो ये सारी चीजें आप लोगों ने सीखनी है. You have to learn it and you have to master it, ठीक है. I am looking at the chat box along with the presentation. So if you guys have any question, make sure to drop them in the chat box. And also I'm looking forward to having an interactive session. So आप लोग chat box को active
रख सकते हैं. I'm gonna encourage that. ठीक है. Before we move on to the next slide, there's this short question I'm gonna ask. So when we talk about physics, since I know physics, you guys might hate that. That's the only subject that you guys might hate when talking about MDCAT prep. So which chapter do you think is the villain in physics? Like आपको बहुत बुरा लगता हो. अब तो there are some new additions in the syllabus as well, like alternating current है or waves, force and motion भी कुछ बच्चों को बुरा लग सकता है. So you guys can let me know in the chat box which is the chapter that you think is the like worst one when it comes to preparation, and I can guide you accordingly based on the specific chapter. Okay. Okay, so we have this question in the chat box. Test session कब से start होगा? So when we talk about test session, you guys can register for the test session. ठीक है. अब टेस्ट सेशन है कौन सा वाला? इट्स बेसिकली नम्स फाइनल स्ट्राइक कोर्स. ठीक है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट नम्स फाइनल स्ट्राइक कोर्स, उसमें वी हैव डिफरेंट ऑफरिंग्स, यानी उसमें आप लोगों के टेस्ट होंगे एंड वी आर गोइंग टू हैव बेसिकली डिस्कशन क्लासेस, जिसमें आप लोगों की जो क्वेरीज होंगे स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द चैप्टर, हम उसको एड्रेस करेंगे. Okay, about the details of the course, you guys can visit the Premed's website. It is generally going to be a 40 days course. Okay, and it's going to start from 1st August. So before first, you guys can register yourself. And the most important thing is the psychological test discussion, because you have like 5% of the test comprising of the psychological portion. And उसमें आपके पास psychological questions होते हैं. So you guys need to master that as well. You guys need to have the basic idea that how to go for those questions. Okay, so the course is starting from 1st August. You guys can, take the website and register yourself for it. So in the next slide, we are going to talk. I'll be answering the details regarding the chapter after we're done with this slide. We're going to talk about this physics syllabus for MDCAT. क्या आपके पास syllabus है क्या? There are some changes as compared to the last year syllabus, जिसमें आपके पास last year vectors and equilibrium नहीं था, ठीक है, alternating current नहीं था, and आपके पास यहाँ से fluid dynamics नहीं था, ठीक है. So these 3 chapters were initially not a part of MDCAT syllabus, but अब ये आपके पास syllabus का part है, ठीक है. So these are the 3 new chapters addition, ठीक है, when it comes to physics का syllabus. बाकी आपके पास last year वाला syllabus ये कुछ topics की addition and subtraction हुई है. You guys can check out the syllabus. उसके अंदर सारे learning objectives and subtopics clearly mentioned हैं for a clearer idea in detail regarding the syllabus. When we talk about the high yield chapters, कि आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनके हम बात करते हैं, दे आर करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज रियली इंपॉर्टेंट. इट इज काइंड ऑफ लेंथी बट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. Dawn of modern physics, students actually, most of the students I have interacted with, they kind of dislike the chapter Dawn of Modern Physics. That does sort of make sense when it comes to FSC level, but MDCAT level में, even FSC level, the chapter itself is very interesting. ठीक है, and it is actually really fun to teach or to learn that chapter as well. ठीक है, but the thing is there are some basic level of concepts that you guys need to have, and once you are going to master that, फिर वो chapter बहुत easy हो जाता है. Next we have force and motion. तो force and motion बहुत important chapter है. That's like the first chapter आपके पास जो generally हम consider करते हैं, start करते हैं जब हम MDCAT की preparation start कर रहे होते हैं, तो हम इसी chapter से start करते हैं. So that is like the most important chapter out there. There are a lot of shortcut formulas to master when it comes to this chapter. There are a lot of बारीक बातें, छोटी-छोटी बातें जो आप लोगों को consider करनी है while preparing for this chapter. Waves and oscillations, I'm seeing different comments in the chat box that you guys don't like this chapter. That does kind of make sense, that this chapter is also very interesting if you guys are actually into it, और अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है. There are different shortcut formulas as well. I do tell my students different shortcut formulas about how to, remember the formulas for Doppler's effect, and that's the very effective shortcut. ठीक है. I myself struggled when I was preparing for my FSC as well as my MDCAT, preparing the formulas for Doppler's effect. I used to hate that topic, to be very honest, but then I kind of figured the way out, and फिर इस तरीके से things got better, and now I like that topic very much. जब भी हम पढ़ भी होते हैं, तो I prefer starting the chapter with that topic, because like that's the best thing I can teach. So वो बहुत मजे का topic है, Doppler's effect. And even जो stationary waves हैं उससे पीछे, they are also really important. You need to just have shortcut formulas with you.
shortcut formulas apply करोगे, everything is gonna make sense. Then we have fluid dynamics, and fluid dynamics the new addition hai. It wasn't in the last year's syllabus, but this chapter is also easy based on whether your concepts are clear regarding the chapter or not. And thermodynamics में students often confuse कर जाते हैं. अच्छा, इस चीज़ में मैं थोड़ा guide कर देती हूँ. Fluid dynamics में students often confuse जो आपके पास change in temperature, change in volume कितना है और volume क्या है और zero और constant वाली चीज़ पे students often confuse this and they confuse it way too much. Also जो आपके पास थोड़ा contradicting concept है about work done by the system or on the system is whether it's going to be positive or negative, and आपके पास यहाँ पे physics और chemistry के concepts भी contradict कर रहे होते हैं. So that thing also sometimes confuse the students, but things are simple. You just need to jot them down on a paper and keep that paper with you all the time. ठीक है, go through that paper every day so that आप उसको रोज go through कर रहे हो और वो आपको याद हो जाए इसी तरीके से. Working energy actually is a pretty interesting chapter, to be honest, and this is interesting as well as a lot. It involves a lot of shortcut formulas as well. Waves को मैंने discuss कर लिया, fluid dynamics को. Waves chapter is the most difficult. If you guys are actually planning to enroll in the cohort, we are going to discuss a lot of shortcut formulas, and I'm actually really क्या कहते हैं, invested in it, and I am getting very excited about it अभी से ही as well. ठीक है, so if you guys are gonna get enrolled, I'm gonna tell you guys the ways to remember the formulas, and they're like super simple, and आप लोग कहोगे क्या है कि तो इतना easy था. ठीक है, vectors and equilibrium, उसमें आपने सिर्फ scalar और vector product dot cross product का concept थोड़ा सा समझना है. If a person is walking in one direction and goes in the opposite direction, work done. अच्छा, इस तरह के जो वर्क डन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वर्क डन सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि विच फोर्स इज डूइंग द वर्क. ठीक है, फिर आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल देखना होता है कि एंगल बन कितना रहा है. ठीक है, एंड देन यू हैव टू फिगर आउट वेदर द वर्क इज डन और नॉट, बिकॉज फिजिक्स में द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 degrees लाइक इन सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बिकम्स 0. ठीक है, next we're going to move to the next slide talking about MDCAT favorites, some concepts, some subtopics. I must say जो आपके पास बहुत ज़्यादा important हैं, they are really high yield. ठीक है, talking about Ohm's law and resistivity. अब देखो resistivity ये एक ऐसा topic है कि यहाँ पे आपके पास question इस तरीके से आएगा कि the examiner is going to ask कि आपके पास जो length है y की you reduced it to half or you doubled it, ठीक है, और या area you reduced it to half or you doubled it or you like quadrupled it, और आपके पास resistivity पे क्या फर्क पड़ रहा है, and you guys are going to solve it. I don't know how. You guys are going to take the direct relation with the length, inverse relation with the area, and you guys are going to go for a solution, and that is going to be wrong. So don't do that. So when resistivity की बात करते हैं, so it does not depend on the length, on the area, or anything under those lines. ये आपके पास सिर्फ nature of material पे depend कर रहा होता है. So even if you cut the wire into 2, even you cut the wire into 10 pieces, it is not going to affect the resistivity. Resistance पे affect पड़ेगा, yes, that's the other thing. But when we talk specifically about resistivity, there is going to be no change. This is the most common question that students actually make mistakes in. Then we have the series and parallel circuits. इसमें आपके पास capacitance भी आ जाता है and resistance भी आ जाता है. इसमें भी we have a lot of shortcut formulas for like if अगर आपके पास सब resistors हैं, उनकी सब कैपेसिटर्स या रेजिस्टेंस है, उनकी कैपेसिटेंसेस या रेजिस्टेंस जो है वो सेम आ रही है, तो यू गाइस कैन यूज अ शॉर्टकट फार्मूला इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द लेंथी वन. ठीक है, then projectile motion, the most important chapter with a lot of shortcut formulas as well. इसमें कभी-कभी ऐसा होता है कि the examiner is going to give you the time period और वो आपसे height पूछ लेगा, and then you're like, okay, I don't know the initial velocity, I don't know the angle, how am I going to solve this? ठीक है, I do understand, but there are shortcut formulas for a reason, and ये shortcut formulas अगर आप लोग master कर लोगे तो then those questions are going to be like nothing, बहुत easy, 2 minute में solve हो जाएंगे. And literally these concepts are simple, you just need to have the right methodology in order to solve that. Centripetal force and tension, this was like the most high yield topic, but now in the recent syllabus centripetal force is excluded from the syllabus, but when it comes to nums, so centripetal force and centripetal acceleration, banking of roads, ये वाले topic, they are included in the nums syllabus. Okay, so if you're like preparing for nums, make sure you do this. This is a very important topic. Doppler's effect, again, we are getting back to waves here. It is a very interesting topic. You just need to have one class with me in order to get the entire idea. And class में formula याद हो जाता है. It's like this simple. Then we have photoelectric effect. This is from the chapter Dawn of Modern Physics. And this phenomena is also important as well as interesting. If you do understand it from the starting, how does this start? How the process begins? Or आपके पास इसकी like how the scientists were trying to work on it, what was the mistake they were trying to make. फिर
आगे करेक्शन इसके अंदर क्या की गई, ठीक है, all the back history and everything. If you guys are gonna master that, this is a very interesting topic as well. Half-life calculation, you have again different shortcut formulas, or you guys can go for like simple logical reasoning methods in order to solve this question. But these questions are super important. Then we have thermodynamic laws. These are also really important. And transformers key efficiency. This is from the chapter electromagnetic induction. Okay? And this is also really important. You need to master the relation between number of turns, voltage, current. आपके पास ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है. स्टूडेंट्स कभी कभी इस चीज में भी कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो हो कैसी रही है. ठीक है, एंड ईएमएफ तो इंड्यूस हो गई, चलो काइंड ऑफ मेक सेंस, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हो गई. हाउ इज दैट ईएमएफ गोइंग टू इंड्यूस अ करंट? It's not just about, you guys remember these 2 to 3 lines कि flux change हुआ तो EMF induce हुई, EMF induce हुआ तो current induce. How is the current inducing to begin with? Flux change किन किन cases में कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है. If I say current change हो रहा है, resistance change हो रही है, flux के साथ उसका क्या relation है? You need to understand it in depth. You need to have a better understanding about it कि if I'm changing the current, if I'm changing the resistance, आप लोगों ने rheostat लगा के भी flux change किया हुआ है. If I'm moving a substance in the magnetic field, how is the flux changing? ठीक है, and if the flux is changing, how is it inducing a magnetic field? Oh, sorry, how is it inducing EMF? ठीक है, so these are some basic concepts that you guys need to master in order to have a better understanding of any chapter out there. I'm going to take your questions before moving to the next slide. Working energy is easier and more enjoyable, I think. Yeah, I'm going to second you in this. Can we discuss some calculator-free tricks, please? So when it comes to calculator-free tricks, first of all, there comes shortcut formulas to rescue you. ठीक है, हर चीज में आप कैलकुलेटर को अवॉइड नहीं कर सकते, तो शॉर्टकट फॉर्मूलाज आर देयर टू हेल्प यू आउट. आप मेन फॉर्मूलाज यूज ही नहीं करते. सेकेंडली, आपने अगर लेट्स से आई आस्क यू टू मल्टीप्लाई और डिवाइड अ नंबर बाय 100 या 200, डूइंग इट विदाउट कैलकुलेटर sounds kind of scary, I know, but that is practically possible. हम इसको gradually step by step सीखते हैं. There is this proper method you guys can use. आप without calculators को solve कर सकते हो. Most important thing is rounding off the numbers. If the number is in fraction, you need to if the number is in decimal, you need to round that off. ठीक है, कुछ फ्रैक्शंस भी आपके पास कट हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं विद द इर्द गिर्द के नंबर्स. अगर ना हो रहे हो तो आप उसको if you're comfortable doing it in the decimal form, आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो. Also, one more important thing that is you need to have a better grip and understanding of how to convert fraction in decimal. ये conversion भी आप लोगों को अच्छे तरीके से आनी चाहिए. ठीक है, tests are going to start, the cohort is generally going to start from 1st August. You guys can register before 1st August to get enrolled. ठीक है, अच्छा, before moving to the next slide, let's have some discussion in the chat box. And are you guys अच्छा, ऐसा करते हैं कि you guys can look at this formula sheet, ठीक है, and here you guys can check different shortcut formulas. ठीक है, like आपके पास power जो है power that is equal to force into velocity, dot product है, dot product to power is going to be a scalar quantity. Kinetic energy momentum के दरमियान क्या relation है? This is the shortcut formula. ठीक है, then आपके पास ये questions आप लोगों ने लाजमी देखे होंगे स्पेशली पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट्स के अंदर कि आपको इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी या इंक्रीज इन मोमेंटम, परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना होता है इस तरीके से. ठीक है, सो वी हैव लाइक डिफरेंट शॉर्टकट फार्मूलाज फॉर दैट. आप बेस्ड ऑन द गिवन सिनेरियो और योर फिजिबिलिटी आप उसको यूज कर सकते हो. ठीक है, फिर अगर वो कहते हैं वर्क डन इन स्टॉकिंग एन नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो आप वर्क डन एक शॉर्टकट फार्मूला से फाइंड कर सकते हो. दिस इज द शॉर्टकट फार्मूला गिवन हियर. ठीक है, फिर अगर आपके पास एक और शॉर्टकट फार्मूला है टू फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी या परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी परसेंटेजेस है, उनके फार्मूलाज हैं. वर्क आउटपुट को किस तरीके से, अगर वो कह दे लोड फोर्स और लोड डिस्प्लेसमेंट दे दे, तो आपको क्या समझ आएगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके whether you will get the work output or work input. ठीक है, सो ये बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग है, ये आप लोगों के पास होनी चाहिए before going to the examination hall. So here we have different questions. Before we solve the questions, I want you to look at the questions and let me know if this is the next MCQ that comes in your next in your NUMS exam, how confident are you to solve this? Just these are two questions here. These are from NUMS past papers. Just let me know how confident are you when it comes to your preparation or when it comes to solving these two questions only. Okay? Whether you guys will get it. You guys can write A as I'll get it.
B as I'm gonna cry, I don't know how to solve that. And C is I'll guess the question and I'm gonna move on. So you guys can try solving these questions on your own as well. And ऐसे भी कर सकते हो कि questions देख लो and let me know by writing in the chat box what you think about these questions. Also, about the NUMS exam, last year the paper was pretty unexpected, and most of you might know that. So, the paper can sometimes be a little unexpected, but you need to have a preparation solid enough to act as your backup no matter how difficult the paper might be. ठीक है, so इस चीज का भी ख्याल रखना है कि clear your concepts as much as you can, practice MCQs as much as you can, make sure you have a mentor you can look forward to, you can ask help for help, ठीक है, and इस तरीके का आपके पास कोई हो जिससे आप हेल्प ले सको, and someone who can actually guide you on how to do a particular question, yeah, how to help you navigate, yeah, how to help you find the solution for a particular question. So looking at the first question, it is, if you stop your car quickly by wearing a seat belt, chances of injury is greatly reduced by the seat belt applied. ठीक है, सो अब वो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि if you stop your car quickly by wearing a seat belt, chances of injury is greatly reduced because the seat belt applied opposite force. ठीक है, the right answer for this is going to be opposite force, कि जो seat belt है उसने कौन सी force apply की, it applied an opposite force. ठीक है, seat belt आपके पास जो आपका motion direction of motion होता है, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन मूव हो रहा होता है ना, लाइक जो कार दैट्स मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो आपके पास जो सीट बेल्ट है, it applies a force in the opposite direction of your motion and it does counter inertia and it reduces the injury by stopping your forward motion more safely. ठीक है, so the answer for this is going to be Charlie, that is opposite motion. That is going to be Charlie. Next we have Sarah goes around a circular track that has a diameter of 20 meters. So उसने यहाँ पे आपको diameter दे दिया है, that is 20 मीटर. अब आपने डायमीटर से रेडियस निकालना है, तो आप रेडियस कैसे निकालोगे? उसने आपको डिस्टेंस भी दे दी है, एस की वैल्यू भी दे दी है 180 मीटर्स. एस की वैल्यू यू हैव 180 मीटर्स. ठीक है, आपने फाइंड क्या करना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी आपने थीटा फाइंड करना है. आप फाइंड कैसे करोगे? सिंपल फॉर्मूला, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा. ठीक है, सो एस इज इक्वल्स टू आर थीटा में आपको आर चाहिए, यहाँ तो डायमीटर गिवन है, तो आप डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा. तो जो रेडियस की वैल्यू आपके पास आएगी दैट इज गोइंग टू बी 10 मीटर. ठीक है, सो आपने थीटा एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू एस ओवर आर, यानी आपने 180 को 10 से डिवाइड कर देना है, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू डिवाइड 180 बाय 10 यू आर गोइंग टू गेट 18 and beta is going to be the right answer for this, 18 radians. Also s is equals to r theta में जो theta की value आती है that is in radians because radians is the SI unit. ठीक है, yes 18 radians, excellent beta, excellent everyone. MDCAT का crash course कब से start होगा? For MDCAT we have different courses जिसमें आपके पास जो अभी recent one है that is 100 days to med school and you guys can enroll. थोड़ा सा syllabus हो गया है, for that portion you guys are going to get access to the recordings. If you're asking about NUMS, so this crash course is going to start, that is NUMS final strike course, and that is going to start from 1st August, so you guys can enroll yourself before 1st August for that. Next we have the angle swept by minute hand in 1 minute. अब आपने एंगल फाइंड करना है कि एंगल swept by minute hand in 1 minute. अच्छा, अगर हम इसको सॉल्व करने के बारे में सोचें तो what are some of the methods that you guys are going to say कि हम इसको उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? Any inputs from your side? To solve this question, हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? आपने एंगल फाइंड करना है, ऑप्शंस देखो डिग्रीज में है, इसका मतलब हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, सो हम यहाँ लिख देते हैं थीटा is equals to question mark, we don't know,
हमें फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूला हम कौन सा यूज कर सकते हैं? अगर हम टोटल एंगल 1 आवर में देखें, यानी हम मिनट हैंड की बात कर रहे हैं ना, तो हम 60 मिनट्स को देखते हैं, मिनट हैंड अपनी रोटेशन कंप्लीट करता है, ठीक है, इन 60 मिनट्स, 1 घंटे में, ठीक है। सो आपके पास जो यहाँ पे 60 मिनट्स में 360 डिग्रीज वो कंप्लीट कर रहा है। ऑप्शन डिग्रीज में तो हम डिग्रीज में लिखेंगे, अगर ऑप्शन रेडियन में होते तो हम 2 पाई रेडियन कहते, अगर ऑप्शन रेवोल्यूशन में होता तो हम 1 रेवोल्यूशन कहते, ठीक है। बेस्ड ऑन दी ऑप्शंस आपने डिसाइड करना है कि आपने किस मेथड से जाना है, ठीक है। सो हमें ये पता है कि आपके पास 60 मिनट किसके इक्वल था, 60 से फ्लिप करते हैं, 60 मिनट जब आपके पास थे तो आपके पास एंगल कितना बन रहा था, 360 डिग्रीज, क्योंकि आपके पास 1 कंप्लीट रोटेशन हो रही थी, ठीक है। 1 घंटा आपके पास कब पूरा होता है, जब पूरा सर्कल कंप्लीट होता है, ठीक है, 60 मिनट्स तभी कंप्लीट होते हैं। सो आपके पास यहाँ पे 60 मिनट्स gave you 360 डिग्रीज। अब आपको चाहिए क्या, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। सो आपने अब 60 मिनट की जगह यहाँ पे लिख देना है 1 मिनट, एंड आपके पास यहाँ पे जो डिग्रीज हैं यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करोगे, 60x इज इक्वल्स टू 360, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 360/60, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 6 1 6, 6 6 36। सो आपके पास राइट आंसर इसका क्या होगा, 6 डिग्रीज, दैट इज अल्फा, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन, यस एक्सीलेंट, द राइट आंसर इज अल्फा। डिस्टेंस इन एन आवर देखना होगा, हाँ, बिकॉज आपके पास जो मिनट हैंड है वो अपनी रोटेशन जब कंप्लीट करती है मेक 60 मिनट्स, एंड 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। Excellent, everyone. Next, we have a process in which all the heat energy is used for increasing the internal energy. अच्छा, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला इसका भी देख लेते हैं। हमें ये चीज तो पता है कि दिस इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसमें हम कहते हैं कि आपके पास जो चेंज इन हीट है, Q, डेल्टा Q होता है, सिर्फ Q लिख रही हूँ, ठीक है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U प्लस वर्क डन। अब वो ये कह रहा है कि ऑल द हीट एनर्जी इज यूज फॉर इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी, सारी हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी के अंदर यूटिलाइज हो रही है, वर्क डन कुछ नहीं हो रहा। अब वर्क डन होता किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, ठीक है। जब हम वर्क डन की बात करते हैं, इट इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। सो आपके पास, अच्छा अब ये चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आपके पास लेट्स से प्रेशर कांस्टेंट है, हम कहते हैं कि कोई भी प्रोसेस है उसमें प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, तो चेंज इन प्रेशर जीरो होगा। चेंज इन प्रेशर का क्या मतलब हुआ, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो फाइनल और इनिशियल की सेम वैल्यू होगी, जब आप उन्हें माइनस करोगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। इसी तरीके से जब मैं कहती हूँ टाइम कांस्टेंट है तो चेंज इन टाइम जीरो होगा। स्टूडेंट ऑफन कंफ्यूज कर जाते हैं, यार टाइम तो कांस्टेंट था लेकिन जीरो भी तो था, तो क्या चीज कांस्टेंट थी क्या चीज जीरो थी, इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। जब एक फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होती है तो चेंज इन दैट फिजिकल क्वांटिटी बिकम जीरो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कहा वर्क डन जीरो है। अब देखो प्रेशर के साथ तो डेल्टा की वैल्यू नहीं लगी हुई, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो नहीं होगा, ठीक है, वर्क डन पी डेल्टा वी के इक्वली होगा। लेकिन वी के साथ डेल्टा लगा हुआ है, इसका मतलब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, आप जीरो किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो आंसर जीरो होगा, पी डेल्टा वी पूरी चीज जीरो हो जाएगी, सो द आंसर इज गोइंग टू बी जीरो फॉर वर्क डन, ठीक है। अब आपके पास किस प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, किस प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, दैट इज आइसोकोरिक, एक्सीलेंट, ठीक है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्क डन जीरो होगा। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि आपके पास वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं, ऑब्जेक्ट का बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं की, तो आपके पास वर्क डन तो नहीं हुआ, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी आइसोकोरिक। अगर हम एडियाबैटिक को देखें तो एडियाबैटिक में आपके पास वर्क डन जीरो होता है, ठीक है। एडियाबैटिक में आप सॉरी एडियाबैटिक में आपके पास हीट कांस्टेंट होती है, चेंज इन हीट जीरो है। जब हीट कांस्टेंट है चेंज इन हीट जीरो है तो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी वर्क डन की इक्वल हो जाएगी, नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी बीटा, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरी, डू राइट देम इन द चैट बॉक्स। Till then we are going to discuss the final strategy, ठीक है।
देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्सेप्ट. यू गाइस कैन क्रैम द नॉलेज, रॉट लर्न कर सकते हो, ठीक है, बट उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे. जो एमसीक्यू होते हैं दे आर कॉन्सेप्ट रिलेटेड. द ओनली डिफरेंस बिटवीन एफएससी एंड एमडीकैट इज कॉन्सेप्ट्स. एफएससी में समटाइम्स यू कैन इवन रॉट लर्न बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू राइट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन. आपने पूरी थ्योरी लिखनी होती है, ठीक है. सो आप उसको रॉट लर्न भी कर लेते हो, थ्योरी लिख लेते हो, इट्स फाइन, यू गेट द मार्क्स, थिंग्स आर ओके. आउट ऑफ लाइक 18 to 20 क्वेश्चंस अगर आपके 2-3 गलत भी हो जाते हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल हो, तो ये लाइक अच्छा 1-2 मार्क्स ही हैं, इट्स गोना बाकी सब्जेक्टिव तो अच्छा हुआ है. बट व्हेन इट कम्स टू एमसीक्यूज, यू हैव ओनली एमसीक्यूज, ठीक है, सिर्फ एमसीक्यूज हैं, उसी का आंसर देना है, ठीक है. कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एमसीक्यूज गलत होंगे, ठीक है. एंड आपके पास कोई लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन वाला बैकअप भी नहीं है कि एमसीक्यू गलत हो गए तो चलो लॉन्ग क्वेश्चन से नंबर मिले, कुछ भी नहीं है, एमसीक्यू से ही नंबर लेने, ठीक है. सो इस वजह से यू नीड टू हैव बेटर कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सिलेबस. हर टॉपिक, हर सब टॉपिक जो सिलेबस के अंदर मेंशन है, सबका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए. एंड यू ऑल नो कि कैलकुलेटर भी अलाउड है नहीं, सो यू हैव टू प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्विंग. डिफरेंट टिप्स होती हैं, डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं कि आप विदाउट कैलकुलेटर चीज़ों को कैसे सॉल्व कर सकते हो. इट्स लाइक रियली इंपॉर्टेंट टू मास्टर दोज इन ऑर्डर टू सॉल्व एनीथिंग विदाउट कैलकुलेटर. प्रैक्टिस के साथ साथ ये चीजें आएंगी. इट्स नॉट एज इफ एक क्लास में मैंने आपको बता दिया एंड यू बी लाइक अच्छा अब तो मुझे सब कुछ आ गया, ऐसे नहीं होगा. I can tell you I can guide you, I can tell you the way to do certain things, but by the end of the day it's your practice, ठीक है. जो आपके पास, आप देखो, जो आपके पास जो स्टूडेंट होता है जो टॉप करते हैं एमडीकैट को, दैट student might be sitting with like hundreds of other students in a class. They're sitting in the same classroom, they're studying from the same instructor. The difference is your own hard work you're doing, ठीक है. It's about your own हार्ड वर्क एंड आप कितना जो एमसीक्यू सॉल्व करने की स्किल को मास्टर कर रहे हो बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस. एंड इट्स नॉट इवन अबाउट डूइंग 500 क्वेश्चंस अ डे या फिर आप 1000 क्वेश्चंस एक दिन में कर रहे हो और अगले दिन यू आर सो बर्नड आउट कि आप एक क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे, ऐसे नहीं होता. Most important thing is consistency. You need to be consistent with your practice. You need to be consistent with your preparation. बेशक आप like 100 questions कर रहे हो एक दिन में, that makes sense. But आप you have to be consistent. रोज की बेस पे फिर आपने उतने questions लाजमी करने हैं. Because इसकी मैं एक specific example देती हूँ. If you need to like have a specific, if you have like a specific aim for the type of body you want, ठीक है, when are you gonna get this in a better way? So if you go to gym daily for 10 minutes या for 20 minutes only, by the end of the year the result you're gonna get is going to be different as compared to अगर आप एक ही दिन में 24 घंटे जिम कर लो, तो आपको by the end of the 24 hours वो रिजल्ट तो नहीं मिलेगा ना जो आपको 24 दिन की कंसिस्टेंसी से मिलेगा. इट्स लाइक द सेम नंबर ऑफ आवर्स. 24 दिन में भी आप 24 घंटे लगा रहे हो, 1 घंटा अगर आप दे रहे हो, और 24 घंटे आप एक साथ भी लगा दो तब भी वो 24 घंटे ही है. बट द आउटपुट यू आर गोना गेट आउट ऑफ इट, दैट्स गोना बी डिफरेंट. व्हाई? बिकॉज इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी. इट्स नॉट एज इफ कि आप पेपर से एक दिन पहले यू आर गोना गेट गो थ्रू एवरी सिंगल थिंग, फिर चीजें कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो जाती हैं, चीजें भूलना शुरू हो जाती हैं, बंदा नर्वस हो जाता है, रिविजन नहीं हुई होती. बहुत ज्यादा ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी प्रिपरेशन के ऊपर जिनका इन्फ्लुएंस होता है. आपके कॉन्फिडेंस ही नहीं बिल्डअप हो रहा होता कि मुझे थ्योरी तो आ नहीं रही, एमसीक्यूज मैंने कोई 200 प्रैक्टिस किए हुए, एंड दैट्स इट, आई एम गोना गो टू द एग्जामिनेशन हॉल और मैंने पेपर देना है, ठीक है. सो इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है. फिर आप हॉल में जाते हो, इर्द गिर्द बच्चे बात करते हैं, अच्छा मैंने तो इतने एमसीक्यूज किया और मैंने तो ये किया, एंड देन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ एंड देन यू फील लाइक ओके मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ठीक है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी. बेशक थोड़े क्वेश्चंस ही करो, बेशक थोड़ा पढ़े हो, ठीक है, पर अच्छा पढ़ो. मेक श्योर द कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर. मेक श्योर यू आर डूइंग अ सर्टेन नंबर ऑफ एमसीक्यूज डेली. एंड उससे हट के अगर आप एडिशनल करना चाह रहे हो, दैट्स बेसिकली व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑडियंस और फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है. सो विदाउट कैलकुलेटर आपको सॉल्व करना है. मेरी एक क्लास से आप लोग नहीं सीखोगे. मेरी एक क्लास से आपको स्किल पता चल जाएगी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है. आपने उस स्किल को डेवलप खुद करना है, ठीक है. यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे. यू हैव टू प्रैक्टिस मल्टीपल क्वेश्चंस इन अ डे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन अ डे, इन ऑर्डर टू ट्रेन योर माइंड कि ये इस तरीके का क्वेश्चन है तो मुझे इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है. If you only do MDCAT, a given topic, is it enough or not? If you're asking about, yeah, फिर हम this unit. If you're asking about NUMS, तो NUMS और MDCAT का syllabus is थोड़ा सा difference है. उसके अंदर there are some sub topics that are not in MDCAT, इस साल remove हो गए, पर वो NUMS के अंदर हैं. There are some new chapters जो MDCAT के syllabus में और NUMS में नहीं है. So if you are taking NUMS, so I'm gonna say कि पहले जो NUMS का syllabus है उसको वो करो, उस पर focus करो. MDCAT और NUMS का syllabus आपके पास कॉमन है बहुत ज्यादा, ठीक है. But there are certain topics that are in MDCAT syllabus, they are not in NUMS. Certain chapters I must say, and certain topics that are not in MDCAT syllabus पर वो NUMS में है, ठीक है.
Numericals of force and motion becomes difficult sometimes. Yeah, force and motion चैप्टर के numericals में often बच्चों को confusion होती है. कभी कभी shortcut formulas नहीं होते स्टूडेंट्स के पास, इस वजह से मसला आ रहा होता है. और कभी कभी ये होता है कि देखो प्रैक्टिस करोगे. अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हमें आ नहीं रहा होता, तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या फिर हम उस चैप्टर को छोड़ के नए चैप्टर पे चले जाते हैं. You guys must have done this. कभी ना कभी तो किया होगा. सो ऐसे भी नहीं करना चाहिए. इट्स नॉट लीविंग दैट थिंग इज नॉट गोना सॉल्व एनीथिंग. यू हैव टू फेस इट. इफ नॉट टुडे, टुमारो. इफ नॉट टुमारो, मे बी वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन. ठीक है. सो जिस चीज को आपने फेस करना ही है, व्हाई नॉट मेक अप योर माइंड एंड फेस इट. ठीक है. सो लाइक उस चीज को अवॉइड करना इज नॉट द सोल्यूशन. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वी हैव ग्राफ इंटरप्रिटेशन. दैट इज अ हाई हील स्किल. ग्राफ में अमूमन आपसे ये पूछा जाता है कि यू हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ या स्लोप ऑफ द ग्राफ. उसके लिए भी शॉर्टकट है. फिजिकल क्वांटिटी पूछ लेता है या फिर निकालने का कह देता है कि मैग्नीट्यूड निकालो ऑफ द स्लोप या ग्राफ. तो आप इजीली उसको निकाल सकते हो. अगर आपने स्लोप फाइंड करना है तो आपके पास जो वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी है आपने उसको डिवाइड कर देना विद एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी. अगर आपने एरिया फाइंड करना है तो वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है. लेट्स से आपके पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, तो वाई एक्सिस पे फोर्स होती है, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वर्क डन. तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी बन रही है? वर्क डन. आपने निकालना है तो आप एरिया अंडर द ग्राफ करके वर्क डन निकाल सकते हो. ठीक है. सो दैट इज लाइक छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं. दे हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन. ठीक है. देन रिविजन. रिविजन इज रियली इंपॉर्टेंट. लेट्स से आपके पास आपने ना मल्टीपल रिविजन्स करनी होती हैं इस तरीके से कि फिर लाइक स्टडिंग समथिंग टुडे, देन यू हैव टू गो थ्रू इट आफ्टर 3 days or 5 days or a week. मेक श्योर टू गो थ्रू those concepts, because if not वो भूल जाएंगे आपको. ठीक है. सो यू हैव टू रिवाइज. आप 2 से 3 चैप्टर्स एक दिन में करो. मेक श्योर करो कि आप उनके ढेर सारे क्वेश्चंस कर रहे हो. देखो, थ्योरी के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रखना. अपने आप को 1 घंटा दो कि मुझे इस थ्योरी को रीड करना है, समझना है. बेशक 2 घंटे दे दो. एक टाइम एलोकेट करो. ठीक है. और उसके बाद वंस यू डन, मेक श्योर यू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ एमसीक्यू. क्योंकि अगर आप, अच्छा एक और चीज में कभी कभी स्टूडेंट्स को ये चीज बता रही होती हूँ कि अगर आप अपने गोल इस तरीके से असाइन करते हो ना कि मैंने कल ये काम करना है, तो उस कल में यू हैव 24 आवर्स. ठीक है. और उसमें से आप 10 मिनट पढ़ोगे, 20 मिनट स्क्रॉल करोगे, फिर 10 मिनट पढ़ोगे, 20 मिनट घर वालों के साथ जाके बैठ जाओगे. इस तरीके से अगर करोगे ना तो कभी भी वो एक जो मोमेंटम होता है वो बिल्ड होते वो ब्रेक हो जाता है. फिर वापस उसको बिल्ड होने में इतना टाइम लगता है. कभी कभी फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू हो जाते हो. ठीक है. एंड दिस लूप इज लाइक इन्फिनिट, कभी खत्म नहीं होता. तो ऐसा क्या करो कि अपने आप को बताओ कि ये 2 घंटे हैं मुझे इसकी थ्योरी करनी है, ये 3 घंटे हैं मुझे ये एमसीक्यूज करने हैं. डन. इन 3 घंटे में और इन 2 घंटों में मैंने हिलना नहीं है. वंस दीज 2 and 3 hours आर ओवर, या अपने लिए जो स्पेसिफिक टाइम एलोकेट किया, वंस दैट इज ओवर, आई एम गोना ट्रीट माई सेल्फ विद समथिंग गुड दैट यू लाइक. ठीक है. मे बी फॉर एन आवर. और वो जो आप फ्री टाइम अपना ले रहे हो, मेक दैट गिल्ट फ्री. आफ्टर पढ़ाई लो ताकि आपको गिल्ट ना हो कि यार मैं पढ़ नहीं रहा, मुझे पढ़ना था, मैं तो रील्स देख रहा हूँ या कुछ इस तरीके से. क्योंकि रील्स तो आप लोग वैसे भी देख ही रहे होगे. इट्स नॉट एज इफ छोड़ी भी है. ठीक है. या फिर बाकी चीजें तो साथ साथ कर ही रहे हो ना. पर देखो, if you do it after doing your work and take that as your reward, you're going to do that guilt free. एक चीज, आपका दिमाग रिलैक्स होगा, आप उस चीज को एंजॉय करोगे. ये नहीं होगा कि आप रील्स भी देख रहे हो, आप गिल्टी भी फील कर रहे हो कि मैं पढ़ नहीं रहा, और रील्स भी देख रहा हूँ, या मैं पढ़ नहीं रही रील्स भी देख रही हूँ, और रील्स देखने में दिमाग रिलैक्स भी नहीं हो रहा आपका, पढ़ाई भी नहीं हो रही. तो ये कांस्टेंट लूप चलता रहता है. आप जो चीज आपने अपने लेजर टाइम के लिए रखी हुई होती है, दैट इज सपोज टू गिव यू प्लेजर, वो आपको प्लेजर भी नहीं दे रही होती. वो उल्टा आप उससे और टेंस हो रहे होते हो कि यार अभी तो मुझे पढ़ना चाहिए था. So make sure you allocate a specific time for a specific task. Once you're done, treat yourself with something you like. Whether it's reels, whether you want to sit with your family, whether you want to go for a walk, or there's some hobby you like, painting, drawing or something, make sure you do that. पर time रखो हर चीज का. ठीक है. So this is like very, very, very important, and you do not इग्नोर योर पास्ट मिस्टेक्स. ठीक है. जो आपने टेस्ट करे, जो गलतियां हो रही हैं, एक रजिस्टर बना लो. अगर आप ईमेल यूज करो तो उन क्वेश्चन को सेव्ड क्वेश्चंस में डाल लो. फ्लैश कार्ड्स उनके बन जाते हैं, ऊपर क्लिक करो फ्लैश कार्ड पे, फ्लैश कार्ड उसका बन जाएगा. अगर फैक्ट बेस है, अगर कॉन्सेप्ट बेस है तो क्वेश्चन सेव कर लो. एंड मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू दोज सेव्ड क्वेश्चंस एंड दोज फ्लैश कार्ड्स. या फिर अगर आप ईमेल यूज नहीं कर रहे तो फिर आप लिख सकते हो, लेकिन लिखते हुए चलो टाइम लग जाता है, टाइम जाया हो जाता है. ऐसा करो, पिक्चर बना लिया करो बेशक. ठीक है. बट मेक श्योर यू गाइज आर having some sort of way कि आप उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हो एंड यू आर गोइंग थ्रू देम. कभी कभी ऐसा होता है पेपर में क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस किया होता है वही आया हुआ होता है, पर हमें पता ही नहीं होता कि हमने गलत किया था तो सही आंसर क्या था. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड सच अ सिचुएशन यू नीड टू रिव्यू योर टेस्ट्स. ठीक है. दैट्स लाइक रियली इंपॉर्टेंट. Of all the shortcuts and concepts, but still some questions are too difficult to understand. कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग स्टेटमेंट ही नहीं समझ पाते. जब स्टेटमेंट ही समझ नहीं आ रही होती स्टूडेंट को तो उसे पता ही नहीं है फॉर्मूला क्या लगेगा. फॉर्मूला उसे आता होता है, ये भी पता होता है सॉल्व किस तरीके से करना है, लेकिन स्टेटमेंट समझना इज इम्पोर्टेंट. वो आप जो इस तरह मुश्किल स्टेटमेंट्स होती हैं उसको स्किप करने के बजाय मेक श्योर यू सिट
ठीक है, एंड फोकस एंड ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन. But how many days prior should the syllabus be completed? अच्छा, there is no specific time. I'm gonna say कि इस इतने दिनों से पहले syllabus complete होना चाहिए. But I must say आपका syllabus complete होने के बाद आपको at least एक दफ़ा revision करने के बाद paper देना जाना चाहिए. ठीक है, revision is very important. So आप देख लो कि आपको revision में कितना time लगता है और वो revision का time छोड़ के उतना time पहले आप लोग अपना syllabus make sure करो कि complete कर लो. बाकी सब्जेक्ट्स की एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने का दिल करता है, पर इन केस ऑफ फिजिक्स देयर इज अ फियर ऑफ डूइंग टुवर्ड्स एमसीक्यू प्रैक्टिस कि वी कैन सॉल्व देम लाइक दिस. अच्छा देखो, ये वही वाली बात है, दिस लीड्स टू अवॉइडेंस. यू सी अ प्रॉब्लम, यू मेक अप योर माइंड बिफोर इवन सॉल्विंग दैट. ठीक है कि यार अगर मुझसे ना हुआ तो फिर ठीक है यार, मैंने इतनी थ्योरी पढ़ ली, अब भी अगर क्वेश्चन सॉल्व ना हुआ, बिकॉज यू आर लाइक काइंड ऑफ स्केयर टू डिसअपॉइंट योरसेल्फ कि मैंने इतना पढ़ा फिर भी नहीं होगा, तो फिर यू काइंड ऑफ लूज होप, राइट, कि यार इतने पढ़ने के बाद भी नहीं हो रहा तो क्या फायदा इतना पढ़ने का. ऐसे नहीं करना. ठीक है, यू हैव टू मेक अप योर माइंड. पहले तो जब भी कोई भी मुश्किल सब्जेक्ट या मुश्किल चैप्टर कर रहे हुआ करो ना, तो हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट अबाउट इट. कहो कि यार मुश्किल है बट इट्स लाइक आई एम टफ एज वेल, आई कैन हैंडल दिस. ठीक है, सो पहले तो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, माइंडसेट पॉजिटिव रखो कि मुश्किल है तो क्या, बाकी बच्चे भी करते हैं, मैं भी कर लूंगा या मैं भी कर लूंगी, इतना मुश्किल तो नहीं है ना कि एक इंसान इसे सॉल्व ना कर सके. ठीक है, एंड इवन इफ यू आर नॉट गोना गेट दिस इन द फर्स्ट गो, यू कैन कीप डूइंग इट अंटिल यू गेट दैट. ठीक है, दैट्स हाउ यू एक्चुअली लर्न. देखो, कभी भी ना, व्हेन यू वर अ किड यू डिडंट नो हाउ टू वॉक, राइट, जब आप पहली दफा गिरे थे, यू डिडंट स्टॉप देयर, you stood up. That was a skill. It took time, but you got that. You acquired that skill, and now you're a master of that. You even know how to run, right? So it's not as if the first time you're gonna open a question, you will know how to solve it. ऐसे नहीं होता. That is a skill. You need it. It is gonna take time. It is supposed to take time. ठीक है? After specific time, थोड़े अरसे बाद, things are gonna get better. You're gonna be master of that particular skill, और फिर जो questions है वो आसान लगना शुरू हो जाएंगे. But if you're going to avoid that, avoidance is not the solution. आज avoid करोगे, कल avoid करोगे, एक ना एक दिन face करना है. ठीक है, if not this year, might be next year. वो चीज घूम के आएगी, वो चीज वहीं रहेगी. ठीक है, सो आपने उस चीज को फेस करना ही है. यू हैव टू डिसाइड द टाइम लाइन कि फेस कब करना है. ठीक है, सो अवॉइड मत क्या करो चीजों को. अगर ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, ट्राई टू फिगर आउट कि मसला क्या आ रहा है. ठीक है, और बैठो, उसको सॉल्व करो, आराम से उसको देखो, जो मसला आ रहा है फिगर दैट आउट, उसको सॉल्व करो. ठीक है, और फिर उसको प्रैक्टिस करो, उससे सिमिलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ताकि आप फिर उस चीज को मास्टर कर सको. दैट इज द वे. Theoretical questions अगर डिफिकल्ट लग रही हैं, तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लूप इन द theoretical concepts जो क्लियर नहीं हुए हुए, जिसकी वजह से theoretical questions जो हैं वो डिफिकल्ट लगते हैं. Very weak in physics numericals, although I practice all the numericals. अच्छा देखो, कभी कभी ये होता है कि you need to build a plan. ठीक है, you need to have a plan in order to solve anything. ठीक है, so अगर आप without plan question खोलोगे, solve करोगे इस तरीके से ना, कभी कभी ऐसे होता है कि you do solve it for like one time or two or twice, और फिर next time you're like clueless again कि क्या करना है, समझ नहीं आ रहा. ठीक है, so when I say practice is important, आपकी जो planning है वो भी बहुत important होती है. ठीक है, first you need to like जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, पहले तो उसको मास्टर करो. ठीक है, देन गो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये चीज फिगर आउट किया करो कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, उसको नोट डाउन किया करो कि मैंने यहाँ पे इस स्टेप में इस तरीके से ये गलती की, मुझे नेक्स्ट टाइम मेक श्योर करना है कि ये गलती रिपीट ना हो. डूइंग अ मिस्टेक इज ऑल राइट, यू गाइस आर सपोज्ड टू मेक मिस्टेक्स, अभी गलती करोगे ताकि एग्जामिनेशन हॉल में गलती ना करो. ठीक है, बट रिपीटिंग अ मिस्टेक इज नॉट अ गुड थिंग. ठीक है, सो व्हेन यू मेक अ मिस्टेक, मेक श्योर यू राइट दैट डाउन समवेयर सो दैट यू डोंट रिपीट इट. ठीक है, और जब हर गलती लिखोगे और उसे रिपीट नहीं करोगे, तो कोई ना कोई प्रोग्रेस तो अचीव होगी ना. How to prepare waves effectively takes a lot of time and concepts are really complex as well. Please guide. अच्छा, waves में देखो theoretical concepts ज्यादा हैं. theoretical concepts को आपने मास्टर करना है. theoretical concepts मास्टर कर लिए, आपने derivations तो करनी नहीं है. then shortcut formulas are gonna help you, वो आ जाएंगे, एंड फिर शॉर्टकट फॉर्मूला से आपने एमसीक्यू सॉल्व कर देना है. ठीक है, जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है उसको तो आपने स्ट्रेंथन करना है ना. लेट्स से अगर मैं आपसे कहती हूँ वेव है क्या चीज, या फिर मैं आपसे कहती हूँ ऑर्गन पाइप क्या है, या फिर मैं आपसे कहती हूँ स्टेशनरी वेव क्या, अगर आपको यही समझ नहीं आ रहा है कि स्टेशनरी वेव क्या है, आप ऑर्गन पाइप नहीं समझ सकोगे. ठीक है, तो जो बेसिक कोर लेवल कॉन्सेप्ट होता है ना, वो आपने क्लियर करना है. ठीक है, वंस दैट्स डन, फिर आप आगे चीजों को मास्टर कर सकते हो, फिर आप आगे शॉर्टकट फॉर्मूलाज वगैरह यूज कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप में. ठीक है, सो या ये चीजें इस तरीके से होती हैं.
If other than that there are any questions, you guys can write in the chat box. इसके अलावा किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मेक श्योर यू गाइस आर राइटिंग दैट इन द चैट बॉक्स. If there are no questions, then you guys can let me know by writing in the chat box. When I'm doing practice of MCQs, तो is it normal गलत होना? Yes. अगर आप MCQs प्रैक्टिस कर रहे हो तो MCQs गलत होंगे. It's fine. This is how you learn. गलत किए बगैर सीखोगे कैसे? ठीक है, तो गलत होना इज नॉट अ बैड थिंग. मेक श्योर कि आप अंडरस्टैंड करो कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जो वीक था या जो आपको समझ नहीं आया हुआ था जिसकी वजह से आपका एक पर्टिकुलर एमसीक्यू गलत हुआ है. ठीक है, एंड देन यू रिवाइज इट. ठीक है, एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड जो एमसीक्यू गलत हुआ. इट्स नॉट एज इफ कि आपने आंसर देख लिया, अच्छा ये था मैंने गलत कर दिया, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसे नहीं. आप अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो मेक श्योर यू टेल योरसेल्फ कि आउट ऑफ 4 ऑप्शंस व्हाई डिड यू चूज अ स्पेसिफिक ऑप्शन एंड व्हाई यू डिडंट चूज दी अदर 3 ऑप्शंस. अपने आप को सेटिस्फाई करना है, अपने आप को इस बारे में बताना है कि एक ऑप्शन चूज किया तो क्यों किया और बाकी 3 चूज क्यों नहीं किए. ठीक है. How to effectively revise physics, like should we solve MCQs more or first revise all topics? अच्छा, this is like a common question. आपने इस चीज़ का वेट नहीं करना कि आप अपनी थ्योरी को मास्टर कर लो पूरा और फिर MCQ सॉल्व करने की तरफ आओ. Talking from my own experience, when I was preparing for my MDCAT, so what I actually did was I compiled the books of different provinces and I started studying from there. ठीक है, and there was this one chapter and it was, you guys might even laugh at me at this, it was biology. Like simple लगता है ना सबको, theory है, simplest subject out there. It was biology. I read the chapter from all the provinces की books. ठीक है, and I was like, okay, now I know everything I needed to know. और उसके बाद मैंने एमसीक्यू सॉल्व किया एंड ट्रस्ट में मेरे एमसीक्यूज गलत हो रहे थे. दैट वाज द पॉइंट. आई वाज लाइक यार मैंने पूरी थ्योरी पढ़ ली है, एमसीक्यू स्टिल गलत हो रहे हैं. एंड एमसीक्यू इस तरीके से थे कि आप वाज लाइक अच्छा ये मैंने क्यों नहीं सोचा थ्योरी पढ़ते हुए कि ये क्वेश्चन इसमें से आ सकता था. सो यू डोंट हैव टू वेट अंटिल यू आर डन विद द एंटायर थ्योरी पोर्शन टू गो फॉर सॉल्विंग एमसीक्यूज. एमसीक्यू सॉल्व करना साथ साथ किया करो. इवन मैं तो ये कहूंगी कि जब आप एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे होते हो ना उससे पहले आप कोई 10-12 उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करो ताकि आपको समझ आए कि अच्छा इस चैप्टर से क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है. ताकि जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर थ्योरी में ढूंढोगे भी. आप थ्योरी को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से देखोगे एज कम्पेयर टू जस्ट रैंडमली एंड पैसिवली रीडिंग द थ्योरी. ठीक है. सो जब आप पहले जिस तरह आप लोग जब कॉम्प्रिहेंशन कर रहे होते थे तो टीचर्स आपको अमूमन कहते थे ना कि पहले क्वेश्चंस पढ़ा करो फिर पैसेज रीड करो. जब पैसेज रीड करोगे तो उन क्वेश्चंस वो आपके जहन में कहीं ना कहीं तो होंगे, तो आप सबकॉन्शियसली उसके आंसर ढूंढोगे इन द पैसेज. यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट यू लुकिंग फॉर. जब आप रैंडमली 4-5 पेजेस का चैप्टर खोल लेते हो और उसको रीड करना शुरू हो जाते हो, यू डोंट इवन नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. ठीक है. इफ यू डू सम क्वेश्चंस बिफोर यू विल नो कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर. ठीक है. सो इस तरीके से आप लोग एक्टिवली पढ़ सकते हो. पैसिव रीडिंग से चीजें बहुत मेस्टअप हो जाती हैं. ठीक है. ऑल्सो रिविजन के लिए भी समटाइम्स स्टूडेंट आस्क के रिवाइज कैसे करें, किसी भी चीज को रिवाइज करना है तो बुक खोल के रीड करना इज नॉट रिविजन. ठीक है. दिस इज लाइक कि आपको पता भी नहीं है आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको ये भी नहीं पता आपको क्या आता है, आपको ये भी नहीं पता क्या नहीं आता, आप खोल के रीड कर रहे हो लाइक अच्छा रिवाइज हो गया. ऐसे नहीं किया करो. रिविजन में भी ऐसे किया करो कि स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, टेक अ सब टॉपिक, अपने आप को सारे सब टॉपिक के बारे में बताओ कि अच्छा इसमें ये था ये था ये था ये था. सिंस अभी इतना टाइम नहीं है कि आप लोग लिखो तो आई एम जस्ट गोना गो फॉर ओरल मेथड. ठीक है. सो आप लोग उसको बताओ अपने आप को कि अच्छा इसमें ये चीज थी ये चीज थी, सब टॉपिक में ये था. वंस यू डन ओपन द बुक एंड चेक कोई चीज मिस तो नहीं हुई. अगर कोई चीज मिस हुई है राइट दैट डाउन ओनली. ठीक है. वो चीज है जो आपको रिवाइज करनी है. फिर नेक्स्ट सब टॉपिक और इसी तरीके से आप लोग 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो. ठीक है. क्योंकि आप लोग पैसिवली रीड नहीं कर रहे ना, आप एक्टिवली सोच रहे हो कि क्या चीज आपको पता है क्या चीज आपको नहीं पता. जो नहीं पता वो लिख लो, जो पता है अच्छी बात है, रिविजन होगी.
ठीक है। सो रिवीजन भी इस तरीके से किया करो, एंड जो नहीं पता होता उसको फिर बार बार रिवाइज करो, क्योंकि वो चीज़ थी जो आपकी थोड़ी वीक थी, उसको रिवाइज करोगे तो वो स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है। सो अगर आप थेरेटिकल रिवीजन करना चाह रहे हो इस तरीके से करो, बट जनरली पूछ रहे हो कि रिवीजन करनी कैसे चाहिए, सो आई मस्ट से कि एमसीक्यूज ढेर सारे प्रैक्टिस किया करो। एमसीक्यूज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, बट इवन इफ लाइक यू मास्टर द एंटायर थ्योरी, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एमसीक्यू नहीं करने आएंगे। ठीक है। सो दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। If there are any other questions, do let me know. I'm gonna wait for like 1 to 2 minutes for the questions before winding up the session here. And make sure you guys fill the form if you need जो form आपको description में जो chat box में form दिख रहा है, make sure you fill that if you want a schedule for your MDCAT preparation. ठीक है. We will send you the schedule if you fill the form, so make sure you're doing that to get the schedule for your preparation. How many question practice is enough for one chapter? Like estimate. देखो, it depends either the chapter is high yield or not. अगर तो chapter high yield है तो make sure करो कि आप उसके ढेर सारे questions कर रहे हो. ठीक है. Generally there is no tentative number I can give या estimate number मैं नहीं बताऊंगी कुछ भी ऐसा, because it like depends on the chapter. But मैं ये कहूंगी कि जो आपके पास past paper के questions होते हैं, they are like roughly आपके पास कितने होते होंगे 100 to 200 हर चैप्टर के हो जाते हैं, वो लाजमी करने। दैट्स नॉन निगोशिएबल, उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है ना, वो तो लाजमी आपने करने। वंस यू डन विद दैट, आप लोग पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट भी देख लो, उसके भी आपको हर चैप्टर के बेस्ड ऑन डिफरेंट चैप्टर्स कुछ के आपको 200 भी मिल जाएंगे, कुछ के आपको 50 तक भी मिल जाएंगे। तो वंस यू डन विद पास्ट पेपर, वो पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट भी करो। फिर आप जो भी टेस्ट दे रहे हो, जैसे अगर आप नम्स देना चाह रहे हो तो नम्स के पास्ट पेपर स्टार्ट कर दो। 2020 से पहले स्टार्ट करो 24 तक। ठीक है। देन फिर आप 2015 से 2020 तक वाले भी देख लो। ठीक है। सो पास्ट पेपर इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई मस्ट से, लेकिन मेक श्योर करो कि एटलीस्ट 300 to 400 कर रहे हो। ठीक है। जिसमें आपके पास पास्ट पेपर और पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट आ जाते हैं, उनको तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है। बट देन अगेन इट डिपेंड्स कि वेदर द चैप्टर इज हाई यील्ड और नॉट, चैप्टर लेंथी है कि नहीं, अकॉर्डिंगली आपके पास एमसीक्यूज होते हैं ना उसके। सो ये चीज भी डिपेंड करी होती है। सो आई थिंक नो मोर क्वेश्चंस। I'm gonna wait for like a minute before winding up the session here. So अगर किसी का कोई भी question है तो make sure you guys write in the chat box. Wave से related देखो, I cannot like teach the entire chapter here, but I must say कि basic concepts हैं जो आप लोगों को clear करने। ठीक है। हर चीज को समझो, स्टेशनरी वेव क्या होता है, स्टेशनरी वेव कैसे बनी, इसकी टाइप्स क्या हैं। ठीक है। साउंड स्पीड जो है साउंड की, वो डिफरेंट मीडियम्स में क्या होती है, साउंड किस चीज पे डिपेंड कर रही है, लैपलेस ने क्या कहा था साउंड के बारे में, न्यूटन ने क्या बात की थी, कंडीशंस क्या थी दोनों की, डिफरेंस क्या था दोनों का, वैल्यूज क्या निकल रही थी, एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट क्या, स्पीड ऑफ साउंड क्या है। ठीक है। तो ये बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप लोगों ने स्ट्रेंथन करना है। एंड बाकी देयर आर सम शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स एज वेल फॉर दिस चैप्टर, सम स्ट्रेटजीज यू कैन यूज टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज। सो ये सारी चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। ठीक है। बट गाइडेंस ये है कि आई मस्ट से कि मेक श्योर यू आर क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट्स। So I think that's it for today's session, everyone. Thank you for joining and making it super interactive as well. So, and पे मैं बस यही कहूँगी कि you don't have to do like 10 chapters in a day. You just need to understand the right parts in the right way. ठीक है। And हमने आज यही कोशिश की कि we make you guys understand how to actually work and how to actually deal with physics. ठीक है। And we are actually having a lot of tests and discussions as well for the NAMS test in our upcoming cohort, especially the psychological portion जिसको students को काफ़ी जिससे रिलेटेड स्टूडेंट्स को काफ़ी एंजाइटी हो रही होती है, ये भी नहीं पता होता सॉल्व कैसे करना है, ये भी आइडिया नहीं होता कभी कभी कि क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं।
So we will be guiding you in that as well. हम पूरा proper आपको guide करेंगे कि उसको किस तरीके से solve करना है and everything. And yes, interference is also an important topic. ठीक है? So if you do like कि अभी हमने किस तरीके से इस पूरी चीज़ को break down किया है for you, and if you think it's working for you, so आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम मॉक्स में प्लस डिस्कशंस में इसको फिर किस तरीके से लेके चलेंगे, एंड स्पेसिफिकली जब वो नम्स के लिए इट्स लाइक made for numbs, तो फिर how helpful that is gonna be. So even if you're not joining, like I want you all to take this energy with you. ठीक है, be consistent and focus and make sure to do all the past papers, and you've got this. I wish you all best of luck for your exams. Thank you everyone for joining and making the class and session interactive, and see you guys inshallah in the course, inshallah, and take care of yourselves, and Allah Hafiz.